will be easier for me to converse. Okay, how many of you are in a job? So if you were working in a job, so please type in a job, and if you were doing freelancing, type freelancing. Job, if you are in job or you are in job, and if you are in a freelancing or some other business, so type business. Or okay, Harshali is in a job, Sobia is doing freelancing, Abhilasha is in business. Okay, all three categories we have. Okay, so that makes sense. Let's begin our session. So it is going to be relevant for each one of you. Okay, so this is Cosmetology Breakthrough webinar, where we are going to talk about awareness of cosmetology field. Since most of you are already cosmetologists, so it is absolutely fine. You already know it, but let me make it a little more clarified. And myths related to cosmetology we are going to talk about. And then we will talk about 40 things in cosmetology you must know. Even if you are already trained people, that is absolutely fine, but at least you will be more aware what are the 40 things that you should know in as a cosmetologist, and how to accelerate your income if you are not a doctor, and if you are a doctor, then how will you accelerate your income. And also we will talk about mastery as a skin and hair care experts with simple steps, and we will talk about 3 secrets to achieve 10 lakh in 1 year using cosmetology. And we will also talk about 3 steps to achieve your goal in 1 year. Now, which part of India you are in, please type your city name, and if you are from other country, please type your country name. Please type your city name or country name if you are not from India. Okay, Thane, Mumbai. All right. So waiting for more answers. And you know my habit that I always keep asking so many questions. So you really have to be alert with your keypad. Thank you so much. Thank you, everyone. So let's move ahead. And our mission is that everybody of us is very much well aware that people are well aware about skin and hair care, and there are lack of trained professionals in skin and hair care. And this seems a good career opportunity as a cosmetologist, because which can bring you on name, fame, and money. And that is what our mission is, that to empower you as an expert of skin and hair. So when we say expert, so it doesn't mean the subject knowledge we are talking about. So what we always try to make understand everyone that apart from the subject knowledge, where you are supposed to be good by default. So that is one thing. And apart from that, you really need to be good at other aspects that we are going to talk about, and that is our whole mission. Now, I'm Dr. Munish Sharma, and I'm a MBBS Diploma in Skin Aesthetics and CIDESCO, and skin and hair care experts working since 2007, and currently working as a Managing Director of National Skin Institute. Now, 3 top-notch questions which might stop you from learning cosmetology. One is that only doctors can do it. Anybody doctor in the group? And second, cosmetology setup is quite expensive. And the third is too much competition in cosmetology. So we will talk about these points very soon. And before that, how did this idea of cosmetology struck me? So it was in 2004 and 5 when I was doing my internship as an MBBS student. So I was doing internship, and then I heard somewhere that some kind of courses are happening which are related to skin and hair. And somehow I was inclined to skin and hair because there were a lot of people, and the cosmetology clinics were flourishing at that time. So that was the just beginning of that era of cosmetology where people were more aware. And honestly speaking, I did that course, and it was just for 3 months. And since that date to till date, there has been no looking back. And I have made enough money out of it. I have made enough name out of it. And that is how I decided now, okay, we should start something more than that. So it is better we start teaching people. So that is how we got into the cosmetology, because I have gone through this process, and I have made money out of it. I have made name out of it. And that is how this idea stuck to my mind. Now, just 1 second. Let me see some chat. What is that? Can't hear you. Ritu, the issue is on your side, because everybody, can everybody hear me? Please type in yes if you can hear me.
Please type in yes if you can hear me. Thank you so much. Okay, thank you. Let's proceed with the session. So cosmetology, when we say cosmetology, so basically it is a professional skill and practice of beautifying the face, hair and skin. Face, hair and skin. नाउ कॉस्मेटोलॉजी का डेफिनेशन काफी जगह पे अलग अलग है. जब कोई डॉक्टर जिसकी बात करता है तो थोड़ी सी मेडिकल एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाती है. अगर कोई नॉन डॉक्टर है जो कॉस्मेटोलॉजी करना चाहता है तो थोड़ी सी नॉन मेडिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया जाता है. But institute to institute it varies, and also it varies from what we understand कि कॉस्मेटोलॉजी में क्या होता है और जो इंडिया के बाहर अब्रॉड में है उसके मीनिंग्स थोड़े से अलग हैं. जैसे कि कुछ जगह पे कलर कटिंग और हेयर एक्सटेंशंस को कॉस्मेटोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है. कुछ जगह पे पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल्स को भी कॉस्मेटोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है. कुछ जगह पे स्किन केयर और हेयर केयर की बात होती है. तो इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड इवन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. Now, what is included in cosmetology here, what we teach, so theory that you learn in cosmetology is what is normal skin and features of normal skin, anatomy of hair, type of skin, type of various instrument to examine the skin, steps to examine the skin, ready-made templates we are talking about, कितने टाइप के पिगमेंटेशन होते हैं, कितने टाइप की sebaceous gland की disorders होती हैं, कितने टाइप के wrinkles होते हैं और sensitive skin का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. और उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी कॉस्मेटिक कंडीशंस हैं जिसपे हमारा मेन फोकस होता है. एक्ने, स्कार, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, स्किन टैग्स, विजिबल नेक लाइंस एंड मेंटेनेंस. उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स की बात करते हैं. ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक पील, लैक्टिक पील, TCA peel, radiocautery, microdermabrasion, PRP, under eye dark peels, PRP for skin and hair, and even galvanic machine treatment. Cleanser, toner, moisturizer, sunscreen, skin and hair vitamins, anti-aging creams, minerals, hair serum, shampoo, conditioner और अभी सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल अगेंस्ट कोविड-19. तो ये सारी की सारी चीजें हमें आनी चाहिए. So if this information was useful till now and if we have included almost everything, please type in yes. If you are clear till now, please type in yes. Please type in yes if you are clear till now. Thank you so much. Okay, let's move ahead. Now, who can do this course? So one, a doctor of any fraternity can do this course because उनकी स्किल और जो नॉलेज है स्किन के बारे में ऑलरेडी उन्होंने डिटेल में स्टडी किया होता है, तो इसके लिए उनके लिए इजी भी होता है. तो डॉक्टर्स इस कोर्स को कर सकते हैं. इसके अलावा जो नॉन डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर बनना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ चीजें बताने वाला हूं थोड़ी देर में जिसमें नॉन डॉक्टर्स के लिए इनफैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है पैसे बनाना इस फील्ड से. And why you should do cosmetology? So obviously there are only 3 reasons. One, कि love for medical professional. तो शायद ऐसा था कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी XYZ रीजन की वजह से नहीं कर पाए, but now this is a great opportunity for you to behave as one, not with a valid degree, but at least without prescribing the medication, injections and steroid, etc. You can definitely be a part of skin and hair care industry, which is a very, very vast industry. You love for yourself and where you want to see a new version and you want to see yourself as an expert of this field. और इसके साथ साथ अगर आप अपने क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं और क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं टू एनहेंस देयर कॉन्फिडेंस, enhance their self-esteem, correcting their perception about themselves, enhancing their looks, enhancing their features, enhancing their mindset, and being a true mentor to their life by helping them to achieve their goal. So if this is your purpose, then definitely you will be a successful cosmetologist. It is not about you. It is all about your audience, about their looks, about their confidence. It is everything about them. Now, how many of you realize that this subject is quite vast and yet a very specific subject which requires a lot of learning?
एंड लर्निंग सी काफी सारे लोग हैं, काफी शायद एक दो लोग ऐसे भी जो रिपीट सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आई थिंक आपको भी ये रियलाइजेशन होगा, यार पिछली बार तो ये स्लाइड मैंने देखी नहीं थी, इस बार मेरा ध्यान इस स्लाइड के ऊपर गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू लर्न एवरीथिंग टू अचीव माई गोल? प्लीज टाइप इन यस और नो, वट एवर यू थिंक। क्या मुझे मेरा गोल कंप्लीट करने के लिए हर चीज कॉस्मेटोलॉजी में जानना जरूरी है या नहीं है? प्लीज टाइप इन यस सो दैट आई अंडरस्टैंड एंड आई गेट टू नो। ओके, सब हर कोई बोल रहा है जानना जरूरी है। यस यस, एनीबडी? हर चीज जानना जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू। नो, सोबिया सेज नो। ओके, हर्षाली सेज नो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स टेक इट कि आंसर क्या है। तो do I need to learn everything to achieve my goal? Actually answer is no. Now what you need to know, make sure कि जो चीज आप सीख रहे हो वो परफेक्टली सीख रहे हो। जैसा कि मैंने बोला, कॉस्मेटोलॉजी में स्किन भी है, हेयर भी है, फेस भी है। तो नाउ द पॉइंट इज, या तो आप स्किन के मास्टर बन जाएं, आप नेल्स के मास्टर बन जाएं, आप हेयर के मास्टर बन सकते हैं। तो आपको सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि एक सब्जेक्ट को समझने के लिए हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बट जब बात आती है मास्टरी की, जब बात आती है सोशल प्रेजेंस की, और जहां पे जिस बात के लिए आपको लोग जाने, देन यू रियली नीड टू बी नैरो डाउन योर स्पेशलाइजेशन, और उस स्पेशलाइजेशन को नैरो डाउन करके उसके एक्सपर्ट बन के आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हाउ टू अर्न 10 लाख इन 1 ईयर एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। नाउ ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि 10 लाख की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। शायद काफी लोग इस बात से अग्री भी करेंगे। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको शायद ये बात पता है कि यूजुअली कॉस्मेटोलॉजी एक वीकली सिटिंग्स का काम है। तो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि जहाँ पे वीकली सिटिंग दिया जाता है? इफ यू अग्री प्लीज टाइप यस, इफ यू डोंट अग्री प्लीज टाइप नो। मैं हर ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट है, जैसे कि पील है, माइक्रोडर्मेब्रेशन है, तो जहां पे वीकली सिटिंग का एक प्रोटोकॉल है। हर्षाली सेज नो, यस, सोबिया सेज नो, डॉक्टर कोमल सेज यस, ऑफ कोर्स। सो काफी, मतलब मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जहां पे वीकली सिटिंग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीज मैंने सामने इसलिए रखी है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए कि जो मैं 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, तो वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, जस्ट टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल। तो बेसिकली क्या है कि यूजुअली वीकली सीटिंग्स होती हैं इसके अंदर, और उसके बाद हर 15 दिन पे सीटिंग का सिस्टम कर दिया जाता है। कुछ डॉक्टर या नॉन डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि भाई 7 दिन से 10 दिन पर सीटिंग लेना शुरू करें, और उसके बाद कुछ कुछ बोलते हैं कि 15 दिन के बाद भी आप आओगे तो चलेगा। और उसके बाद जो आता है एवरी मंथ सिटिंग। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बट आपको सारी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अगर आप फोकस करेंगे कि जहां पे वीकली सिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। तो यहां से हम लेते हैं कि 10 लाख कैसे बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस पर ट्रीटमेंट की। लेट्स से पील की ट्रीटमेंट की बात करें, या हम किसी भी पील की बात करें, या हम इवन फ्रूट पील की भी बात करते हैं, या फिर हम माइक्रोडर्मेब्रेशन की बात करते हैं, या फिर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, या फिर हम एक्ने ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एक तरह से ऐसा मान के चलिए 1000 रुपीज पर सेशन का कॉस्टिंग कोई भी चार्ज करता है। और सिर्फ 2 क्लाइंट आपको लेने हैं। अगर 2 क्लाइंट भी अगर आप लेते हैं तो 2000 रुपीज पर डे इनकम होता है, जिससे 60,000 रुपीज पर मंथ आपका इनकम होता है, एंड इट गोज टू 7,20,000 रुपीज। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए। रियलिस्टिक कैलकुलेशन आप थोड़ा सा सोच विचार करके कर सकते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि 2 क्लाइंट बोलना आसान है बट लाना मुश्किल है। तो दैट इज माई जॉब कि उसको मैं इजी आपके लिए कैसे बनाऊं। तो दैट ऑल्सो आई विल आंसर इन सम टाइम। तो 2 क्लाइंट के हिसाब से 7,20,000 रुपीज हो जाता है, अगर हम 1000 रुपीज पर सिटिंग के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई 1500 रुपया ले रहा है तो उसका इनकम हो जाता है 2 क्लाइंट के हिसाब से 10,80,000, और अगर 2000 रुपीज के हिसाब से कोई चार्ज करता है तो इट बिकम्स 14,40,000 रुपीज पर ईयर, जो कि इनकम है। अब मैंने यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है कि आई वोंट सजेस्ट मोर देन 2 ट्रीटमेंट अ डे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
अब इस चीज के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक रियलाइजेशन ये करते हैं कि अगर हमें 2 क्लाइंट पर डे की जरूरत है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ऑलमोस्ट 700 क्लाइंट हमें लाना पड़ेगा। और हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि 700 क्लाइंट्स का अरेंजमेंट करना इन अ ईयर इज अ टफ जॉब? इफ यू फाइंड इट अ टफ जॉब, राइट yes. If you don't find it a tough job, please write no. Please write yes or no. It is a tough job. Yes. Anybody else? Harshali says yes. Abhilasha says no. Oppo says yes. Anybody else? So yes, it is going to be a tough job, and then arranging 2 clients per day, that is 700 clients in a year, और तब जाकर हमें 10 लाख मिलेगा, तो बेटर है हम कुछ और कर लें। ये करने की हमें क्या जरूरत है? तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, एंड बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि 4 पिलर क्या है मार्केट में खड़े रहने के लिए। तो सबसे पहला पिलर जो आता है वो है आपका ऑथेंटिसिटी का, यानी कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसके अंदर ऑथेंटिक होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छी मार्केटिंग क्यों नहीं करेंगे, पहली बार आप अपने क्लाइंट को जरूर पकड़ लेंगे, बट अगर क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिला तो वो आपके पास नहीं आएगा दोबारा से। तो हो सकता है उसमें आपको 700 क्लाइंट नहीं, 700 से ज्यादा क्लाइंट की आपको जरूरत पड़े। दूसरा है वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि और क्या सपोर्टिव वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं क्लाइंट की लाइफ में, क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट देने से या सिर्फ प्रोडक्ट देने से बात नहीं होता है। वैल्यू एडिशन में आपका कम्युनिकेशन भी आता है, आप किस तरीके की उसको पोस्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट देते हैं, और आप फोन पे अवेलेबल हैं या नहीं है, और कितने कंसल्टेशन आप फोन पे प्रोवाइड करते हैं। तो दैट विल आल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्लाइंट को आपके साथ बांधे रखने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके सब्जेक्ट की नॉलेज। तो उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि पूरे सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट एटलीस्ट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो आपने क्लाइंट को दिया है उसका आपको ए से लेके जेड तक हर चीज पता होनी चाहिए, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट लेवल पे आता है स्किल। जब आप प्रोसीजर करते हैं, जब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो वहां पे आपका स्किल भी एक एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करके कॉस्मेटोलॉजी में जो ट्रीटमेंट है वो सिटिंग वाइज होते हैं, और आपकी जो उस समय की स्किल है वो एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। नाउ 3 टॉप सीक्रेट्स टू अचीव योर गोल। इट इज राइट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि राइट ऑडियंस मुझे कहां से मिलने वाला है। दूसरा सीक्रेट है कि आपकी राइट मार्केट आपको पता होनी चाहिए कि राइट मार्केट मुझे कहां से मिलने वाली है। तीसरा जो सीक्रेट है, राइट सर्विस आपकी होनी चाहिए, कि जो रेलेवेंट सर्विस है। अगर ये स्लाइड आपके लिए सेंस क्रिएट कर रही है तो प्लीज टाइप सेंस। प्लीज टाइप सेंस इफ यू फाइंड दिस स्लाइड मेकिंग सेंस टू यू। थैंक यू एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, अभी सभी ने ये बात लिखी है कि इट इज मेकिंग सेंस, तो इसका मतलब एक चीज का रियलाइजेशन आप लोगों को है, और जो रियलाइजेशन आप लोगों को है कि कॉस्मेटोलॉजी का जानकारी एक बात है, और उसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत है, जहाँ पे राइट ऑडियंस की बात आती है, राइट मार्केट की बात आती है, और राइट सर्विस की बात आती है। तो हमारे यहाँ पर जो भी टीचिंग की जाती है उसमें ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होता है। एंड इट इज नॉट अ इजी टास्क टू फिल्टर right audience, not an easy task to filter right market, and not an easy task to filter right service. Now, अभी बात करते हैं राइट ऑडियंस की। तो राइट ऑडियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक चीज हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑलरेडी कॉस्मेटिक क्लिनिक्स एक मशरूम की तरह हमारे आसपास खुले हैं। तो काफी लोगों ने देखा होगा हर दिन कोई ना कोई नया कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक खुल जाता है हमारे आसपास, और ये डिमांड डेफिनेटली कोरोना लॉकडाउन के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ अब लोग क्या है कि हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं, वो और ज्यादा कॉन्शियस होंगे इस चीज को लेकर, और अपनी लुक्स को लेकर ये ट्रेंड आगे जाकर बढ़ने ही वाला है।
बिकॉज अभी घर में रहकर लोग काफी ज्यादा पक चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि वी रियली नीड टू डू एक्सपेरिमेंट विद आवर लुक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज काफी टाइम से घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा भी हो रहा है कि चलो घर पे बैठे हैं, काफी टाइम हो गया है, तो नाउ पैसा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज में जीना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस कॉस्मेटोलॉजी की डिमांड डेफिनेटली आगे जाकर बढ़ने वाली है। अब जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाया था कि गेटिंग 2 क्लाइंट्स पर डे विच मीन्स 700 क्लाइंट एक साल में चाहिए, तो काफी लोगों ने लिखा था कि वो डिफिकल्ट है और कुछ लोगों ने लिखा था नहीं है। बट लेट मी टेल यू, आपको 700 क्लाइंट का जरूरत नहीं है 10 लाख बनाने के लिए एक साल में, क्योंकि आपको सिर्फ 60 क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट है। और इसका सिंपल रीजन है कि आपकी सीटिंग मंथली बेसिस पे रिपीट नहीं होती है, आपकी सीटिंग वीकली बेसिस पे रिपीट होती है। तो अगर आपका सर्विस लेवल अच्छा है तो आपको सिर्फ 60 क्लाइंट्स पे फोकस करना है, जिनको आप अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, अच्छी सर्विस दे सकें और उनको रिजल्ट दे सकें, क्योंकि क्लाइंट की सीटिंग रिपीट होने वाली है। तो एक्चुअल task is to find 60 clients. So if you find this slide amazing, please write amazing. Please write amazing if you find this slide amazing. Hope this was an eye opener for you. And it is like this. See, थोड़ा सा माइंड का हमने शिफ्ट किया और चीजें बड़ी आसान लगने लग जाती हैं। तो यही चीज आती है कि जहां पर हम कंटिन्यूअस कन्वर्जन में होते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग में होते हैं, तो हमारे ब्रेन एक अलग लेवल पे सोचना शुरू करता है, हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो लर्निंग में कंसिस्टेंट बेसिस पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस एनवायरमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि सीक्रेट था क्या, कि प्रोफाइलिंग ऑफ ऑडियंस कैसे करें, किन लोगों को टारगेट करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं वो एग्जांपल है जो शायद मैं मेरे लिए यूज करता हूं और जहां पे मैंने मेरी ऑडियंस की प्रोफाइलिंग की हुई है और जिसके बेसिस पे मैंने पिछले सालों में काफी ज्यादा अर्निंग की है या नाम कमाया है। तो मैं उस चीज की बात करूंगा, बट नॉट नेसेसरी कि मेरा आइडिया आपके साथ काम करे, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ताकि आप उससे एक एनालिसिस कर पाए कि आपके लिए कौन सा आइडिया काम करेगा। तो प्रोफाइलिंग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं ऑडियंस की? सबसे पहला पैरामीटर आता है उनका फाइनेंशियल स्टेटस। तो फाइनेंशियल स्टेटस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रिच क्लास को टारगेट करना है या अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना है। डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल एंड डिपेंडिंग अपॉन योर माइंडसेट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट्स, यू कैन डिसाइड कि मैं मिडिल क्लास को टारगेट करना चाहती हूँ, हाई क्लास को टारगेट करना चाहती हूँ और रिच क्लास को टारगेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फिलॉसफी आने वाला है। उसके बाद दूसरा आता है उनका एज ग्रुप। तो एज ग्रुप डिसाइड करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्ने पे फोकस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन एज ग्रुप हो सकता है मे बी लाइक 18 to 22, बिकॉज दैट इज द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको ज्यादा करके एक्ने आते हैं। अगर आप फाइन लाइन ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं, देन मे बी यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग 30 to 40 year of age group. So age group is very, very important. Third is their sex. So they are male or female. So which one you want to focus on? So I'll give you an example. Let's say if I want to treat people with acne, तो मेनली प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स को ज्यादा आते हैं, या इफ आई टॉक अबाउट हेयर फॉल, तो मैं ये मेरा फिलोसफी में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं क्या करता हूँ कि आई फोकस मोर ऑन मेल इन एज ग्रुप ऑफ से 32 और सॉरी 35 एंड अबव। तो मैं ऐसे लोगों पे फोकस करूंगा जहां अगर मैं हेयर को लेकर उनका ट्रीटमेंट करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं एक्ने का लेकर चाहता हूं तो मैं फीमेल पे ज्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट इज देयर इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट मींस व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अभी कोई इंसान के बाल गिर रहे हैं बट इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट पर्सन, दैट कैन नॉट बी माई ऑडियंस, because the person is very happy even with the bald look, so that cannot be my person, that cannot be my client. तो वहां पे मुझे उनका इंटरेस्ट लेवल भी चेक करना है कि क्या वो वाकई में इंटरेस्टेड है अपने हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगर मैं एक्ने का बात करूं, किसी लड़की को एक्ने आ रहे हैं, हो सकता है ना दिस इज लाइक देयर कि वो काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बट समहाउ दैट गर्ल इज लाइक चलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा चेहरा खराब भी हुआ तो मुझे चलेगा।
then that customer cannot be my client. मैं कितना भी एजुकेट करूं तो वो बात वहां पे बनने वाली नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये है कि सामने की ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी डिजायर क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। एंड बेस्ड ऑन दिस 4 पैरामीटर हम एक प्रोफाइलिंग करते हैं अपनी ऑडियंस के। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूं, आई फोकस ऑन who are upper middle class in an age group of say 25 to 35 females who are looking for a skin care treatment or maintenance. Now this is the category that I have targeted. Now यहाँ पर 25 to 35 फीमेल का एज ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, यानी कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस अप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, their age group is defined, their sex is defined and their interest level is also defined कि वो स्किन केयर ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं और या फिर वो मेंटेनेंस के बेसिस पे अपनी स्किन का अच्छा केयर लेना चाहते हैं। तो अगर यहां तक आपको लगा दिस वाज अमेजिंग तो प्लीज टाइप अमेजिंग, प्लीज टाइप अमेजिंग, और इफ इट वाज एन आई ओपनर टू यू राइट आई ओपनर, write eye opener if you find it eye opener or amazing, anything is fine. Thank you so much. So thank you everyone. Let's move ahead. अब बात करते हैं ऑडियंस का, तो प्रोफाइलिंग हमने कर लिया, अब बात करते हैं राइट मार्केट की। तो अब ऐसे क्या चीजें हैं जहां पे हमें राइट मार्केट को एक्सप्लोर करना जरूरी है। जैसे कि मैं मेरे ही एग्जांपल के हिसाब से जाता हूं, जहां पे मैंने लिखा हुआ है आई फोकस ऑन हु आर अपर मिडिल क्लास इन एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 फीमेल हु आर लुकिंग फॉर अ स्किन केयर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस। नाउ द क्वेश्चन आई विल आस्क इज कि मैं ऐसे लोगों को कहां फाइंड आउट करूं। नाउ देयर आर ओनली 2 मेथड ऑन दिस अर्थ जो मुझे बताते हैं। तो पहला जो मेथड है कि वी अप्रोच देम, कि हम उनके पीछे भागे और उनको ढूंढें। कहां ढूंढें? जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप फाइनल एग्जाम्पल ना लेकर चलें, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट अलग है। कोई वो हर बार उनकी ऑडियंस, ये मेरी ऑडियंस है जो मैंने प्रोफाइल कर रखा है, बट आपके हिसाब से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप कंफर्टेबल होंगे वो आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जैसे कि हम अप्रोच करते हैं वर्किंग क्लास लेडीज को, ज्यादातर क्या होता है कि दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, इट मींस लुकिंग गुड इज नॉट देयर डिजायर, इट इज देयर नेसेसिटी। तो नेसेसिटी जहां पर आ गया तो डेफिनेटली वहां पर उनका इंक्लिनेशन स्किन केयर ट्रीटमेंट की तरफ होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली क्या है, usually they are in age group of say 25 to 35, they are female, they want to get married, so definitely that is an ideal audience that we can decide. So this is just an example, we have 10 more ideas जिसके ऊपर काम किया जाता है, this is just one of them. Second approach is कि दे अप्रोच अस। कई बार किसी इंसान को लगता है कि मैं क्लाइंट के पीछे कितना भागूंगा और कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा और मैं उनको ढूंढूंगा कहां पर। कई बार हम टोटली ब्लैंक होते हैं कि हम कहां पर जाके ढूंढे। वर्किंग क्लास लेडीज तो मैंने लिख दिया, बट मैं उनको ढूंढूं कहां पर, मैं फिजिकली वहां पर जाऊं, मैं पैम्फलेट बांटूं, मैं विजिटिंग कार्ड बांटूं, या मैं किस अप्रोच के ऊपर काम करूं। तो सेकेंड आइडिया इज कि दे अप्रोच अस। नाउ हाउ विल दे अप्रोच अस? maybe one idea could be social media marketing. So social media marketing on a consistent basis and in a scheduled manner. For example, अगर मैंने आज लिख दिया है कि भाई मैं स्किन केयर के ट्रीटमेंट करता हूं और किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप आइए मेरे पास और स्किन ट्रीटमेंट करवाइए, और उसके बाद 1 महीने तक मेरा कुछ अता पता नहीं है और मैं डिजिटल पे कुछ डाल ही नहीं रहा हूं, क्या मेरे पास लोग आएंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज पीपल विल सी कि यार ये इंसान ने एक बार पोस्ट डाला है और उसके बाद तो इसका अता पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर, नॉट नेसेसरी कि आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब जगह पे एक साथ आना है, नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। चूज वन सोशल मीडिया और उसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रहें, मे बी ऑन अ वीकली बेसिस, so that is a good flow, or maybe twice a week or maybe once a day, it just take 5 or 10 minutes to post out something or over there,
और इस चीज का मैं मैजिक आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पोस्ट करके कितना ज्यादा पैसा बनाया है, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। तो कंसिस्टेंसी इज मेन, और वहां पे शेड्यूल इज डेफिनेटली वेरी मच नेसेसरी। तो अगर यहां तक आप कन्विंस्ड हैं तो प्लीज राइट कन्विंस्ड, CONVICED। प्लीज राइट कन्विंस्ड if you are convinced till now. Thank you everyone. अब let's move ahead. मैंने शुरू में आपको बताया था, yes I'll be taking question in the end, Shaina, don't worry, I'll be taking questions. Okay, how to earn 1 year 10 lakh in 1 year as a cosmetologist। तो मैंने एक लाइन यूज किया था कि मैं 2 ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो उसके पीछे साइंस क्या था, थोड़ा सा लॉजिक समझने का ट्राई करिए। देखता हूं अगर मैंने इसके ऊपर अगर आगे स्लाइड बनाया है। ओके, देखिए 2 ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे? मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स। अगर हम घर पे जाकर भी सर्विस दे रहे हैं तो भी 2 ट्रीटमेंट को 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर वो हमारे क्लिनिक पे या हमारे प्लेस पे ही आ रहे हैं तो सिटिंग जो है 20-30 मिनट्स की होती है। बट कंसिडरिंग की वेटिंग टाइम, फोन कॉल, थोड़ा सा इधर उधर की बातें और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 घंटे हमारे ऑन एन एवरेज कंज्यूम होते हैं। अब बात है कि हमें इतना तो पता है कि 24 घंटे में से हमें 8 घंटे काम करना जरूरी है, तभी हम प्रोफेशनल कहलाएंगे। काफी सारे लोग हैं जो फ्रीलांसर बोलते हैं अपने आप को, बट दे डोंट इन्वेस्ट 8 आवर्स इन देयर वर्क, विच इज वेरी बैड थिंग। तो आपको 8 घंटे तो अपने काम में लगाने ही है, चाहे आप जॉब में है, चाहे आप बिजनेस में है, और चाहे आप फ्रीलांसिंग में है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि 3 घंटे में अगर आपने 2 ट्रीटमेंट कर दिए हैं तो बाकी के 5 घंटे आप क्या करने वाले हैं? तो बाकी के 5 घंटे आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको वो जो 2 ट्रीटमेंट पर डे के लिए चाहिए उनके लिए मार्केटिंग करना है। तो आपको वो टाइम वहां पर इन्वेस्ट करना है। आपको सेल्स के बारे में सीखना है, आपके मार्केटिंग के बारे में सीखना है, ताकि कैसे मुझे 2 क्लाइंट्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। नहीं तो ये 2 क्लाइंट जो कि मैंने बोला 60 क्लाइंट आपको ढूंढने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद भूल गए और अपनी जगह पे जाके बैठ गए, क्यों तो आपके वो 2 क्लाइंट भी छूट जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी डेफिनेटली मेंटेन करनी है। अब आपका एनालिसिस एक समझने के ट्राई करिए कि आपने ट्रीटमेंट में लगाए 3 आवर्स, लेकिन मार्केटिंग में लगा रहे हैं आप 5 आवर्स। राइट, आर यू गेटिंग दिस? तो यानी कि हमें ज्यादा फोकस करने की कहां जरूरत है? हमें मार्केटिंग और सेल्स पे फोकस करने की जरूरत है। अभी सिनेरियो ऐसा आ गया है कि कोरोना लॉकडाउन भी है, और इसके बाद काफी सारे लोग इस फियर में होंगे, क्या पता यार मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे यार मैं तो फ्रीलांसर हूं, मेरे पास क्लाइंट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। काफी सारे लोगों को फियर होगा, अरे मैं तो बिजनेस वूमन हूं, मेरा तो सैलून है, मेरा तो क्लिनिक है, लेकिन अब मैं कैसे काम करूं, कैसे क्लाइंट्स को अपने पास लेकर आऊं। कुछ टेंशन लेना नहीं है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोकॉल पे काम करना है। अगर आप 3 घंटे ट्रीटमेंट में लगा रहे हैं तो आपको रिमेनिंग 5 आवर्स आपको मार्केटिंग और सेल्स पे लगाना है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। इफ आई एम मेकिंग सम सेंस प्लीज टाइप सेंस। Please type sense if I'm making some sense to you. Thank you, everyone. Okay. The next is राइट मार्केट हमने ढूंढ लिया, और राइट मार्केट ढूंढने के बाद डेफिनेटली राइट सर्विस देना बनता है, क्योंकि अगर राइट सर्विस नहीं देंगे तो वो बात बनने वाली नहीं है। तो राइट सर्विस में हमें क्या क्या देना होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वी नीड टू गिव रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस नहीं दे पाते हैं, just guys just hold on for 30 seconds, I need to switch off my video, just 1 second, just 30 seconds. Okay, जल्दी।
ओके, थैंक यू सो मच। सो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस आपको देना जरूरी है, सिर्फ बातों से काम होने वाला नहीं है, तो यू रियली नीड टू गिव रिजल्ट्स। और उसके बाद रिपीट सर्विस आपको तभी मिलेगी अगर आप रिजल्ट्स अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि 4 सीटिंग अगर आपको किसी क्लाइंट को देनी है इन अ मंथ, डेफिनेटली यू रियली गॉट टू पे अटेंशन एंड गिव इनफ टाइम एंड गिव इनफ सर्विस। एंड उसके बाद आती है वैल्यू एडिशन सर्विस की। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपका एक ट्रीटमेंट करके हो जाता है तो आपको डेफिनेटली उनको कुछ अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर आपको उनको एडवाइस करनी है, वो एक ऐसी एडवाइस करनी है ताकि वो पेशेंट या क्लाइंट आपके पास रिपीटेडली वापस आए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि इतना सब सीखने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है? प्लीज टाइप इन यस इफ यू फील सो, एंड इफ यू टाइप नो इफ यू डोंट फील सो। कितने लोगों को लगता है कि एक एक्सपर्ट की जरूरत है ये सब चीजें सीखने के लिए? कॉस्मेटोलॉजी तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट उसके अलावा जितना फोकस हमको रियल लाइफ में लगाना पड़ता है, तो आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। और कितने लोगों को आपको लग रहा है कि कॉस्मेटोलॉजी सीखना एक, आई एम नॉट सेइंग मार्केटिंग, आई एम सेइंग रेलेवेंट कॉस्मेटोलॉजी मार्केटिंग एंड रेलेवेंट कॉस्मेटोलॉजी सेल। अगर आप इस चीज को आज तक ऑप्शन बनाकर चल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप जॉब करते हैं, अरे भाई मार्केटिंग एंड सेल्स मेरा काम नहीं है, हम इजीली मना करते हैं वहां पर जाकर। क्यों? क्योंकि उनके पास मार्केटिंग के लिए अलग लोग होते हैं, सेल्स के लिए अलग होते हैं। लेकिन अब ये बात तो सबको पता है कि जॉब की काफी सारे लोगों को रिस्क फैक्टर बना हुआ है, और डेफिनेटली वही लोग जॉब पे रहेंगे जिनको कॉस्मेटोलॉजी में रेलेवेंट मार्केटिंग और रेलेवेंट सेल आता है। और बाई चांस अगर आपका जॉब से आप हट जाते हैं या आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हैं, देन ऑल्सो ये आपके लिए मस्ट है कि रेलेवेंट कॉस्मेटोलॉजी मार्केटिंग, रेलेवेंट कॉस्मेटोलॉजी सेल आपको आना बहुत जरूरी है। पहले ये ऑप्शन था, बट नाउ इट इज अ नीड जिसको आपको फुलफिल करना जरूरी है और जिसको आपको सीखना जरूरी है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे फ्रीलांसिंग में हैं, या फिर आप अपने बिजनेस में हैं। And how many of you realize कि you really need to take your own responsibility at a bigger level? क्योंकि अभी तक हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे थे तो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। फ्रीलांसर से तो चलो ठीक है यार, काम चल रहा है क्योंकि एक दो क्लाइंट मिल जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब काफी लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी है। तो डेफिनेटली यहां तक अभी काफी लोगों का माइंडसेट बन चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था 1000, 1500 और 2000 के हिसाब से, और मैंने हमेशा मेंशन किया है कि दो क्लाइंट से ज्यादा हमें नहीं करना है और हमें 8 आवर से ज्यादा काम भी नहीं करना है। नाउ 3 स्टेप्स टू अचीव योर गोल। तो अभी तक मैंने आपको सीक्रेट शेयर किए, अब गोल कैसे अचीव करना है मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड इफ यू रियली वांट टू नो कि ऐसे 3 स्टेप्स क्या हैं, तो प्लीज टाइप करें आई वांट टू नो। प्लीज टाइप इन आई वांट टू नो इफ यू वांट टू नो योर स्टेप्स, 3 simple steps to achieve your goal. Please type I want to know. Lengthy word, yes, I know it. Please type, only 2 people want to know, 3 people want to know. Okay, before that, I thank you so much for putting in your messages. Now I want to know कि आप में से काफी सारे लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कि कोई जॉब में है, कोई फ्रीलांसिंग में है और कोई बिजनेस में है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी जरूरी है कि अब हमें क्या-क्या चेंजेस करने हैं। और कॉस्मेटोलॉजी सीखने के लिए आप सबने शायद 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना लगाया होगा और उससे ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ है। नाउ व्हाट इज द स्टेप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड? लेट्स बिगिन विद दैट डायरेक्टली। पहला स्टेप, प्रिपरेशन टाइम। तो कितने टाइम तक हमें प्रिपरेशन करना है एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए, वो बहुत जानना जरूरी है। काफी लोगों के दिमाग में सवाल आता है कितना प्रिपरेशन करें, कब तक करें, पता नहीं ना, 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, या पूरी जिंदगी प्रिपरेशन करते रहना है। तो हियर द आंसर इज वेरी सिंपल, आपको 2 महीने तक एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रिपरेशन करना है। अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है
और अगर आप ऑलरेडी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो आपको करेक्शन टाइम पे काम करना है, जो कि अगेन 2 महीने का है। तो प्रिपरेशन टाइम और करेक्शन टाइम 2 मंथ्स का है। जब इन चीज के ऊपर काम कर लेते हैं तब आपका शुरू होता है कलेक्शन टाइम, जो कि 8 मंथ्स या उससे ज्यादा का होता है। अभी देखिए यहाँ पर 2 महीना प्रिपरेशन टाइम, 2 महीना करेक्शन टाइम, 8 महीना कलेक्शन टाइम, तो टोटल हो गए 12 महीने। दैट इज हाउ आई एम मेकिंग यू अवेयर कि 12 महीने में हमें अपने कैसे गोल को अचीव करना है। सो लेट्स सी कि पहले 2 महीने में क्या करना है। तो पहले 2 महीने में हमें करना क्या है कि हमें कॉस्मेटोलॉजी को एक बार दोबारा से लर्न करना है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास नोट्स पड़े हैं, रेफर टू देम, आप अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करिए और रिफ्रेश के साथ साथ सारे नोट्स को पढ़ लीजिए। और अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहां पे आपको लर्निंग मिले। और इसके साथ साथ पैरेलली आपको काम करना है राइट ऑडियंस पे, राइट मार्केट पे और राइट सर्विस डिलीवरी पे। अब अगर मैं राइट ऑडियंस की बात करूं तो ऑडियंस की प्रोफाइलिंग बहुत वास्ट है, बट कौन सी प्रोफाइल आपको सूट करती है वो चीज आपको समझना जरूरी है। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट आपको पता नहीं है। तो राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन योर राइट ऑडियंस। उसके बाद राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी काम करेगी, फेसबुक वाली करेगी कि इंस्टाग्राम वाली करेगी, यूट्यूब वाली करेगी या कुछ और करेगा या पर्सनल मिलना करेगा। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो वहां पे आपको एनालिसिस करना है और इसके साथ साथ राइट सर्विस डिलीवरी के क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हैं, इन चीजों को आप अपने एक्शन में लेकर आइए। दोबारा से रिवाइज करिए, अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से ट्रेनिंग लीजिए। और अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, टेक ट्रेनिंग फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर अगेन। उसके बाद बात करते हैं करेक्शन टाइम की। तो 2 महीने में ये चीजें हो जाएंगी आपकी। और अगले 2 महीने में आपको क्या करना है, तो कॉस्मेटोलॉजी का प्रैक्टिकल लर्निंग आप तब तक कर चुके होंगे, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी के कोर्स ज्यादा करके 3 महीने से ज्यादा के होते नहीं है। और इस दौरान आपकी मास्टरी हो जाती है आपकी राइट ऑडियंस पे, राइट मार्केट पे और राइट सर्विस डिलीवरी पे। काफी लोगों को ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि यार ये ऑडियंस का प्रोफाइलिंग मैं इजीली कर लूंगा, बट इट इज नॉट सो। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इवन हमने काफी साल लगे हैं ये चीजों को समझने के लिए और ये चीजों को सीखने के लिए। तो इट्स अ प्रैक्टिस। और वही लर्निंग जो हमने पिछले 5 साल में सीखी है वो हम आपको 1 महीना या 2 महीने में सिखाएंगे और आपको रेडीमेड ऑडियंस आपके इंटरेस्ट लेवल और आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो अगले 2 महीने हो जाते हैं आपके करेक्शन टाइम। और उसके बाद बात करते हैं आपके कलेक्शन टाइम की, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है आपकी राइट ऑडियंस के लिए, राइट मार्केट के लिए और राइट सर्विस के लिए। एक क्वेश्चन मैं यहां पर थोड़ा सा पूछना भूल गया। तो क्वेश्चन जो है, एक चीज बताइए कि चलिए आज आपने राइट मार्केट, राइट ऑडियंस और राइट सर्विस लेवल आपने डिसाइड किया। और जब आपने डिसाइड किया है, लेकिन जब आप मार्केट में उसको ट्राई करने उतरे तो क्या वो परफेक्ट होगा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑडियंस प्रोफाइलिंग? इफ इट वुड बी करेक्ट प्लीज टाइप यस, इफ इट विल बी नॉट करेक्ट टाइप नो। प्लीज टाइप यस इफ यू थिंक कि पहली बार में ही ये करेक्ट होगा, और अगर आपको लगता है कि पहली बार में करेक्ट होने के चांसेस कम है, टाइप नो। Anybody else? Yes, I'm waiting for the answers. तो कुछ लोगों ने लिखा है यस, कुछ लोगों ने लिखा है नो। और आई थिंक जिन लोगों ने यस लिखा है या तो वो मेरा पहले का सेशन अटेंड कर चुके हैं या आप ऑलरेडी बोर्न स्मार्ट पीपल हैं जिनको ये चीजें पता हैं। बट थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने नो लिखा है दे आर ऑल्सो राइट, बिकॉज पहली बार जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, ये ऑडियंस का प्रोफाइलिंग मैंने किया बट इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो वहां पे ट्रायल एंड एरर शुरू होना होता है। और इसीलिए यहाँ पर हमने करेक्शन टाइम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ताकि हम पूरे साल वो करेक्शन करते ना बैठे, 2 महीने के अंदर फटाफट वो करेक्शन पे लेकर आए, ताकि उसके बाद हम बिल्कुल कलेक्शन पे फोकस करें और हमें ज्यादा झंझट ना हो आने वाले टाइम में। तो कलेक्शन टाइम इज मींस दैट यू आर कलेक्टिंग मनी फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर। नाउ देयर इज एन एक्शन टेम्पलेट
तो अगर आप ऑलरेडी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो भी आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं तो भी आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ताकि आई वांट टू बिकम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे आई वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज। तो आपके 3 रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप ये दूसरी एक टास्क करेंगे, आई वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय। तो यू विल डिसाइड द डेट। जब आप डेट डिसाइड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन टाइम कब से शुरू हो रहा है आपका, आपका करेक्शन टाइम कब से शुरू हो रहा है, और आपका कलेक्शन टाइम कब से शुरू हो रहा है। इफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज टाइप सेंस। Please type sense if it is making sense to you. Thank you, everyone. Thank you. So shall we move ahead? Okay. So let's talk about the cosmetology now. Now, मैं हमारे यहाँ पर जो है उसके बारे में बात करूंगा, और ये ऑफर के बाद आपको एप्रीहेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफर के बाद मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो शायद ऐसी ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं जो हमने और आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उन ऑप्शंस को जानना और समझना जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑफर फर्स्ट। तो ऑफर क्या है, हमारे यहाँ पर 3 महीने का कॉस्मेटोलॉजी कोर्स है, जिसमें 10 ऑनलाइन थियरी सेशंस होंगे, 1 घंटे का है, और उसके बाद 10 ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। उसके बाद ऑनलाइन थियरी सेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे कमिंग सैटरडे से, तो उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि थियरी हम ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल सेशन लॉकडाउन के बाद लिए जाएंगे। और इसका जो फीस है 1,06,200 रुपीज है। तो हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड इट एक्सपेंसिव, or how many of you find it cheap? Please type cheap if you find it cheap. Please type expensive if you find it expensive. Anyone? It's expensive. Okay, so lockdown. So let's begin with the offer. So the offer is, lockdown price is only 25,500, and to attend only theory sessions, you need to pay 5,500 only. I hope now, is it expensive or is it cheap? Is it expensive? Harshali, thank you so much. You are a rich person. Please pay us 1,06,200 only. Offer not valid for you. Thank you. Just kidding. So lockdown price is 25,500, and to attend only theory sessions, you need to pay only 5,500. So I hope this has become cheap now. And now, और रिमेनिंग जो आपका 20,000 रुपीज है, वो जब भी आपका प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगा उससे पहले आपको पे करना है। तो अभी के लिए जो आपका मेन फोकस है 5,500, जिसमें थियरी सेशन कंप्लीट किए जाएंगे। कौन से थियरी सेशन कंप्लीट किए जाएंगे वो मैंने शुरू में आपको बताए थे। इफ एनीबडी वांट टू सी देम अगेन, प्लीज टाइप आई वांट टू सी इट अगेन, बट इफ यू डोंट वांट टू सी इट, इट्स फाइन, तो आई विल टेक इट अहेड। तो थियरी सेशंस आपके कंप्लीट किए जाएंगे। यस, वी नो कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट इट इज वेरी चीप नाउ, बिकॉज अभी हम वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर हमारी भी प्रैक्टिस हो गई है जूम पे, जहां पर हम एक साथ काफी लोगों को हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज चीप एंड इट इज वर्थ द प्राइस। और इसके साथ साथ ये ऑफर आज के लिए है, अभी के लिए है, 15 मिनट के लिए है। अब इस अटेंड करने के लिए, 10 ऑनलाइन सेशन को अटेंड करने के लिए अभी आपका जो मेन फोकस है दैट इज ओनली 5,500, जो आपको अभी पे करना है। ये आप फीस पे कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से, नंबर मैंने दिया है वहां पर, दैट इज माई नंबर डायरेक्टली, और या फिर आप बैंक अकाउंट में भी ये पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू लिटिल अहेड। You can take a photograph of this if you have already not taken it. और उसके बाद इस जो भी आपकी फीस आएगी उसमें 10% फीस जो है वो आपके हमारे यहाँ पर एक गुरुद्वारा है अंधेरी में, तो वहां पर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग काफी लोगों को खाना खिला रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं भी वहां से खाना खाता हूँ, तो डेफिनेटली ये 10% फीस आपका गुरुद्वारे में भी जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? तो 15 मिनट का टाइम है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो जब तक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब तक मैं दूसरी चीजों पे बात कर लेता हूं। तो यस, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन।
तब तक मैं आगे बढ़ूं, जब तक आप अपना सवाल सोच रहे हैं. इफ यू वांट मी टू मूव फर्दर, प्लीज टाइप यस, एंड इफ यू वांट टू टाइप योर क्वेश्चन, प्लीज टाइप क्वेश्चन. Thank you. Okay, I'll take it ahead. Is that okay with everyone? Please type in. I'm not able to get a clear picture, clear idea. Shall I move ahead or shall I wait? Waiting for your reply, guys. Thank you. Okay, so I'll move ahead. Okay. So let's talk about why you should join. So this is just a Mumbai article. Okay. अभी यहाँ पर क्या है कि कॉस्मेटोलॉजी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, ये आप सब को पता है. रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, लोगों की अवेयरनेस भी है. तो अगर आप कॉस्मेटोलॉजी दूसरों के लिए ना सही तो एटलीस्ट आप अपने घर में खुद के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए भी स्किन केयर और हेयर केयर एक्सपर्ट बन सकते हैं. लर्निंग नेवर गोज वेस्ट, इट एवरीबडी नोज दिस. उसके बाद बात करते हैं स्किन केयर और हेयर केयर में आप क्या क्या बन सकते हैं. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लॉगर, तो आप आई होप कि मतलब पता है ब्लॉगर का, तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं. और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल निकाला है, एक केस स्टडी निकाला है जॉन रॉबर्टसन का, जिसका ब्लॉग है द एवरीडे मैन. तो वो करता क्या है बंदा, कि वो मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, एक्सफोलिएटर, क्लेंजर, टोनर, इनके बारे में लिखते रहता है. अगर आप उसका फैन फॉलोइंग देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है. तो रिमेंबर दिस नेम, जॉन रॉबर्टसन, जो ब्लॉगिंग करके पैसा बनाते हैं, कॉस्मेटोलॉजी के ब्लॉगर हैं. उसके बाद आप ट्रेनर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं. और यूट्यूबर में गोथम मिस्टा का एक नाम है. और इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एक स्किन एंथुजियास्टिक या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, जो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है यूट्यूब पे. और इसका फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो एक वीडियो पर वीक, तो वीक में सिर्फ एक ही वीडियो डालती है. और कब से डाल रही है वो, जुलाई 2014 से. और ये मैंने बताया था आपको कि कंसिस्टेंट लेवल पे आपका काम करना जरूरी है. तो कंसिस्टेंट बेसिस पे एक वीडियो पर वीक है, और जिसमें उसके फॉलोवर्स हैं 5,64,000. और उसने कितने वीडियो अभी तक डाले हैं, 155 वीडियो अभी तक डाले हैं, जिसका व्यूज अभी तक उसको मिले हैं 3,79,45,532. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शायद इन्होंने एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक का भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, उसके बावजूद भी इनको इतने व्यूज मिले हैं. और अगर मैं इनकी अर्निंग का बात करूं तो जो अर्निंग यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड के नीचे दिख नहीं रहा है, let me try to show it to you, just one second. Check this earning income so far. तो $37,945, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22 lakhs. तो इतना बड़ा इनकम किया है, तो इसके आगे 10 लाख, मतलब हम तो सिर्फ 10 लाख की बात कर रहे हैं. तो ये अर्निंग यहां तक हुई है इनकी. कंसिस्टेंसी इज द की. कुछ लोग फ्रीलांसर बन सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी में, जिसका हम बात कर ही रहे थे. जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया और अब्रॉड में है, लेकिन आज के टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए नहीं है. यू रियली नीड टू नो right marketing and relevant sales approach also in cosmetology. तभी आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे. उसके बाद करते हैं, आप बिजनेस ओनर बन सकते हैं. अब why should you join, that is done. Okay, what you get, ऑनलाइन थ्योरी सेशंस है आपके, ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशंस है. पोस्ट ट्रेनिंग आपको रेगुलर फोकस अलाइनमेंट मिलता है. और इसके साथ साथ लाइक माइंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है. वो कैसे मिलता है लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा. सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा ही आपको. जो लोग आज इनरोल करते हैं उनके लिए सेपरेट ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन सेशंस की डिटेल आती है. इसके साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी है एक, जहां पर कॉस्मेटोलॉजी लीडरशिप मास्टरमाइंड है हमारा, जिसके अंदर हम सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी का बात नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम बात करते हैं मार्केटिंग की, सेल्स की और ऑपरेशंस की. कैसे अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कैसे रेलेवेंट मार्केटिंग किया जा सकता है, ये सारी चीजों का अवेयरनेस आपको वहां पर दिया जाता है. और जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी आपकी, वो नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट अंधेरी वेस्ट में है. एड्रेस मैंने स्लाइड पे दिया हुआ है. इसके बाद बात करते हैं व्हाई शुड यू ज्वाइन.
तो बेसिकली क्या है कि सक्सेस को अचीव करना आसान है। एक्चुअली क्यों है आसान? क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो सक्सेस होना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ बोलते हैं कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, बट करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे आप एक्शन टेकर्स के एनवायरनमेंट में आते हैं, और यहाँ पर जब आपको पता चलता है कि कॉस्मेटोलॉजी लीडरशिप प्रोग्राम में अरे इसने ये किया है तो मुझे भी वैसा करना है, उसको वैसा करके रिजल्ट मिला, उसको ये करके क्लाइंट मिला, तो आप इस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं और आप अपने माइंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में रखते हैं और फोकस्ड रखते हैं। और कितने लोगों को ये डेफिनेटली पता होगा कि कहीं ना कहीं एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी ट्रेनिंग्स में ये आपको बाय डिफॉल्ट एंड ऑटोमेटिकली मेंटरशिप या हैंड होल्डिंग डेफिनेटली मिलती है। हमारे पास जो स्टूडेंट है ऑलरेडी 31 सिटीज, 12 स्टेट्स और 8 कंट्रीज से ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट आ चुके हैं, एंड द लिस्ट इज ग्रोइंग। And we at National Skin Institute are winner of 5 awards, and we under promise and over deliver. I think अगर आप में से कोई जानता है, कुछ लोग जानते भी हैं, तो डेफिनेटली दे नो दिस। और इसके बाद कुछ अवार्ड हैं जो हमने लिए हैं पिछले 5 साल में। तो ये कुछ अवार्ड्स के फोटो हैं, कुछ जी बिजनेस, जी टीवी पर जो इंटरव्यूज वगैरह आए हैं, या एसटीएफ इंटरनेशनल के साथ हमारे इंटरव्यूज हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने डाले हुए हैं। तो अगेन जस्ट रिवाइजिंग वंस अगेन कि ये थियरी सेशंस हैं 10, जिनका प्राइस है 5,500। तो ये चीज ले सकते हैं, और अगर इसमें आपको वर्थ नहीं मिलता है तो आप वहीं पे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। बट समवेयर वी नो कि इट इज वर्थ इट। और 5,500 डेफिनेटली आप इसका वैल्यू फॉर मनी है, लर्निंग आपकी इफेक्टिवली होने वाली है, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दिस। नाउ आप में से अभी तक जितने भी लोग हैं, तो अभी आपको ये रियलाइजेशन तो हुआ होगा कि आप अपना टाइम काफी क्वालिटी के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे वेबिनार सेशंस भी अटेंड कर रहे होंगे। तो इफ यू आर अटेंडिंग वेबिनार्स इन लॉकडाउन पीरियड, प्लीज टाइप इन यस। प्लीज टाइप यस इफ यू आर अटेंडिंग वेबिनार्स इन लॉकडाउन। किसी के भी वेबिनार डजंट मैटर, अगर आप वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे, तो प्लीज टाइप इन यस। प्लीज टाइप यस। हाउ मेनी पीपल? ओनली वन? ऑल राइट, ओके। तो जो भी लोग वेबिनार यूज कर रहे हैं, तो दे कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि चलो हम लॉकडाउन में कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। एंड इट इज रियली अ बिग थिंग, बिकॉज काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, साइकोलॉजी पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ क्राइसिस उनको बना हुआ है, और हेल्थ क्राइसिस के बाद उनको इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अब काफी लोगों का माइंड भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया है। सो इट्स अ गुड थिंग, कीप लर्निंग एंड यू शुड कीप लर्निंग, और इट्स टाइम टू शेयर विद द वर्ल्ड कि आप लर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस पूरे स्क्रीन का एक सेल्फी लीजिए, और सेल्फी लेके यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपने पेज प्रोफाइल पे शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह सीखना शुरू करें। तो डेफिनेटली यू शुड डू इट। और यहाँ पर इसके साथ साथ अब आपके एक रिक्वेस्ट है, और जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करता हूं कि हमारा एक प्ले लिस्ट है, हैशटैग आस्क एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर मुनीश। तो जहां पे हमारे वीडियोस हैं, कॉस्मेटोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस बने हुए हैं, तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। 1 लाख का टारगेट है। एक अमेजिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। डू यू वांट टू नो? If you want to know an amazing thing, please type yes. This is very interesting thing which I just recollected. Please type yes if you really want to know. Please type yes if you want to know. Only one person want to know. Okay. The amazing thing सुनिएगा, ये शायद अच्छा हुआ जो कुछ लोग निकल गए हैं। इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबको बताने के लिए ये चीज नहीं है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ कभी बैठे हैं या बात करते हैं, और या कभी रोड पे जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो ये फ्लैट को देखो, हमारे जमाने में 5 साल पहले या 10 साल पहले ये फ्लैट हमें 2 लाख रुपए में मिल रहा था, और आज ये 2 करोड़ का हो गया है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस एग्जाम्पल, प्लीज टाइप मी। अगर ऐसा सुना है आपने, प्लीज टाइप मी। करेक्ट? करेक्ट। तो नाउ अब हम क्या सोचते हैं उस टाइम पे
अभी अच्छा, अगर हम अच्छे बच्चे हैं तो हम सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बट वी फील गिल्टी कि भाई अगर इतना सस्ता था तो लिया क्यों नहीं। करेक्ट, हमारे दिमाग में आता है। और कई बार हमें गाली देने का मन भी करता है कि मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो आपने लिया क्यों नहीं। उस टाइम पे अगर ले लेते तो आज के टाइम में हमारे हालात अच्छे होते और हमारी लाइफ अच्छी होती। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? इफ यू अग्री प्लीज टाइप इन अग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। टाइप अग्री इफ यू अग्री। हम खुद अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि तो लिया क्यों नहीं। करेक्ट। तो आज के टाइम में, नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग, अंडरस्टैंड दिस। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आने वाले टाइम में ये एक रियल एस्टेट की तरह काम करने वाला है, जहां पर आपको अपनी पोस्ट डालने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और तब आप अपने बच्चों से बोलोगे कि हमारे जमाने में ये चीज फ्री थी, और आपके बच्चे बोलेंगे अबे चू, तो किया क्यों नहीं। तो इफ यू रियली डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन, बी ऑन सोशल मीडिया। इफ दिस मेक्स सेंस टू यू प्लीज टाइप सेंस। Please type sense if it made sense to you. I hope most of you might be laughing on this statement, but this is true because आज के टाइम में सोशल मीडिया फ्री है, उसका यूज करो। जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस कैप्चर कर सकते हो उसको कैप्चर करो, क्योंकि बाद में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और हो सकता है अगर आप मौका लेंगे भी तो पैसे देकर लेना पड़ेगा। आज के टाइम में ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म फ्री हैं। जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जितने कम से कम टाइम में आप ज्यादा फॉलोवर, ज्यादा सब्सक्राइबर जितने ज्यादा ले सकते हो, प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ। लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। चलो, we will end this session. So tomorrow's session is going to be on how to earn 10 lakh as a makeup artist, and it is at 2 p.m. And if you are a makeup artist or if you have inclination for makeup artist, और अगर आपने कॉस्मेटोलॉजी का सीख लिया है तो आई थिंक आपको मेकअप आर्टिस्ट्री में भी पता होना चाहिए कि कैसे 10 लाख बनाए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजीज होंगी विद लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। तो लेट्स सी, कल के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you, action takers. Any questions? If anybody has a question, please type yes, else I will wind this session. So thank you everyone. And I will close the meeting. If anybody has a question, please type on my WhatsApp. I will answer it there. Thank you everyone. Thank you for your presence.